everyone, so in this video we will continue our discussion with the pathological calcification. So without any further ado, let's get started. Now moving on, we will discuss about the macroscopic appearance in the case of the local or the dystrophic calcification. So simply the calcium salt appear as a fine white granules or the yellowish white or grey chalky masses within the tissues, have a gritty feeling and firm in the consistency. Calcification is common in the cattle, sheep and the rabbits. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the macroscopic appearance in the case of the local or the dystrophic calcification. So simply the calcium salts will appear as the fine or the white granules or as yellowish white or grey chalky masses within the tissues. बेसिकली किसी भी एनिमल में अगर लोकल और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है तो वहां पे क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन, और वहां पे जो कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है वो आपको फाइन और वाइट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे एंड दे कैन आल्सो अपीयर एज येलोइश व्हाइट और ग्रे चॉकी मासेस प्रेजेंट विद इन द टिश्यूज. ठीक है, आफ्टर दैट दे विल हैव द ग्रिटी फीलिंग. जब आप इन कैल्शियम डिपॉजिट्स जो कि टिश्यूज में प्रेजेंट है उनको छुओगे तो आपको कुछ किरकिरेपन की फीलिंग आएगी. दे विल हैव फर्म कंसिस्टेंसी. बेसिकली ये जो कैल्शियम डिपोजिशन है वहां पे आपको हार्डनेस देखने के लिए मिलेगी. साथ ही साथ दिस कैल्सिफिकेशन इज यूजुअली सीन इन द केस ऑफ कैटल, शीप एंड रैबिट्स. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the microscopic appearance. So in the case of the HND stain, it will appear as a deep blue granules. In the case of the von Cosa silver nitrate stain, the calcium appear as the black spears. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the microscopic appearance. So simply when you will perform the HND stain under the microscope, you will see the deep blue granules of the calcium. एच एंड डी स्टेन अगर आप परफॉर्म करते हो तो वहां पे जो कैल्शियम के ग्रेनुअल्स हैं वो आपको डीप ब्लू कलर के देखने के लिए मिलेंगे. एंड व्हेन यू विल परफॉर्म द वॉन कॉसा सिल्वर नाइट्रेट स्टेन, द कैल्शियम अपीयर एज द ब्लैक स्पेयर्स. और जब आप वॉन कॉसा सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग परफॉर्म करते हो तो अंडर द माइक्रोस्कोप आपको जो कैल्शियम है वो ब्लैक स्पेयर्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the metastatic or the general calcification. So simply it is the deposition of the calcium salt in the many tissues throughout the body. The deposition will occur in the normal tissues. The derangements of the calcium metabolism and resulting in the hypercalcemia, that is calcium level which is more than 12 milligram percentage. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द कैल्सिफिकेशन एंड इट इज मेटास्टैटिक और द जनरल कैल्सिफिकेशन. सो सिंपली इट इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन मेनी टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी एंड द डिपोजिशन विल अकर इन द नॉर्मल टिश्यू. बेसिकली क्या है, मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन के केस में कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है इन मेनी टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड दीज ऑल टिश्यूज आर नॉर्मल वन. ठीक है. The reason behind is the derangement of the calcium metabolism resulting in the hypercalcemia. It means the calcium level will be more than 12 milligram percent. बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर एनिमल में मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन है तो वहां पे क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा इन मेनी टिश्यूज विच आर नॉर्मल. एंड यहाँ पे इसके पीछे एक रीजन होता है. बेसिकली क्या है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म फॉल्टी हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो 12 मिलीग्राम परसेंट से भी ज्यादा हो चुका है. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the etiology of the metastatic or the general calcification. So simply it is the hypercalcemia. The major cause of the hypercalcemia is the increased secretion of the parathyroid hormone, destruction of the bone due to the tumor, vitamin D related disorders including the vitamin D intoxication, renal failure that will result in the phosphate retention which will lead to the secondary hyperparathyroidism. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द etiology ऑफ द मेटास्टैटिक और द जनरल कैल्सिफिकेशन एंड इट इज द हाइपरकैल्सीमिया. Now we will talk about the major cause of the hypercalcemia. It is due to the increased secretion of the parathyroid hormone. देखो, ये जो मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेजर कॉज दैट विल डेवलप द हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन. सो सिंपली क्या है, अगर किसी भी एनिमल में पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंड वहां पे फाइनली क्या होगा, मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन. ठीक है.
The hypercalcemia can be developed due to the destruction of bone due to the tumor. अगर किसी बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू ट्यूमर तो वहां पे भी हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है. It can also develop due to the vitamin D related disorders including the vitamin D intoxication. बेसिकली क्या है, अगर विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स किसी एनिमल में है तो वहां पे हाइपरकैल्सीमिया होगी एंड अल्टीमेटली मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन. ठीक है. आफ्टर दैट द रीनल फेलियर will also develop the hypercalcemia conditions as the phosphate retention leads to the secondary hyperparathyroidism. बेसिकली क्या है, अगर किसी एनिमल में रीनल फेलियर होता है तो वहां पे फोस्फेट का रिटेंशन होने लगेगा जिसकी वजह से सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा एंड इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया. ठीक है. So now moving on in the etiology, simply the deposition of the calcium occur in the organs throughout the body, especially in those that secrete the or excrete the acid substance such as stomach which will secrete the HCl acid, kidney that is hippuric acid secretion and lungs that is carbon dioxide. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द etiology ऑफ द मेटास्टैटिक और द जनरल कैल्सिफिकेशन, तो उसी में आगे बात करते हैं. So simply the deposition of the calcium will occur in the organs throughout the body, especially those secrete or excrete the acid substance. Basically क्या है, मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन के केस में क्या होगा कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो उन ऑर्गन्स में होगा स्पेशली जो कि एक्सक्रीट और सीक्रेट करते हैं एसिड सब्सटेंस को. जैसे कि स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड होता है, किडनी में हिप्पूरिक एसिड होता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है. तो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन आपको अक्सर और नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा इन द केस ऑफ मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन. ठीक है. Moving on, we will discuss about the morphology of the metastatic or the general calcification. Simply it is similar as in the case of the dystrophic calcification. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the morphology of the metastatic or the general calcification. तो जो भी मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के केस में देखने के लिए मिले थे, इट विल बी सेम इन द केस ऑफ मेटास्टैटिक और जनरल कैल्सिफिकेशन टू. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the significance and the result of calcification. It itself is usually harmless and cause no clinical dysfunctions. Occasionally, it may impair organs motility. The massive deposition of the calcium in the kidney will develop a nephrocalcinosis condition which may in time cause the renal damage. The calcium disappears from the tissue when the primary cause is removed. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the significance and the results of the calcification. So simply it itself is usually harmless and cause no clinical dysfunction. Basically किसी भी एनिमल में कैल्शियम डिपोजिशन बिल्कुल हार्मलेस होता है एंड इसकी वजह से कोई भी क्लिनिकल डिस्फंक्शंस यूजुअली नोटिस नहीं किए जाते. ठीक है. Occasionally it may impair the organs motility. कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम डिपोजिशन के कारण ऑर्गन्स की मोटिलिटी खत्म हो जाती है. After that, in the case of the massive deposition of the kidney, it will develop the condition of nephrocalcinosis, which may cause the renal damage. Basically क्या है, अगर किडनी में ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा तो वहां पे नेफ्रोकैल्सिनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, which can cause the renal damage also. ठीक है. The calcium disappears from the tissue when the primary cause is removed. बेसिकली क्या है कि कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जाके टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं. अब इनके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हुआ. फॉर द एग्जांपल, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपोकैल्सीमिया वाज द कॉजेटिव एजेंट बिहाइंड द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम. तो सिंपली अगर हम प्राइमरी कॉज को रिमूव कर देंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन, तो जो भी डिपॉजिट कैल्शियम है टिश्यूज में वो भी खत्म हो जाएगा. ठीक है. So with this we have completed the topic pathological calcification. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.